پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یا الہی 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 یا الہی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کو نبی مان کے بھی اس دوائی کو پینے کو تیار نہیں ہے کہ جس دوائی کے ساتھ ساری صحت، ساری کامیابی اور دنیا کی بھی بلندی اور آخرت کی بھی بلندی اللہ نے جوڑ رکھی ہے، بس یہی دوائی پینے کو تیار نہیں۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان میں ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ کے ہو جائیں اور آخرت میں بھی تو اللہ کے ہو جائیں۔ آج ہمارا مدحت رسول کا جو سیگمنٹ ہے، ہمارے ثنا خواں صاحب حضرات سارے
موجود ہیں اور آج مدت رسول کا آغاز کریں گے ہمارے بھائی محمود اشرفی صاحب. جی محمود بھائی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آقا آپ اپنی غلامی کی دے دے سند. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. اپنے طلبوں کا دھوبن عطا کیجیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ہے. آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ہے. آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ہر چرد کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چرد کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چرد کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ ہے. آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ہے. آج
اس در پہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میرے بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ ماں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں ان پر درود ہر دم ان پر سلام ہر دم ہر کوئی پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ انشاءاللہ شان رمضان میں دربار مصطفیٰ میں اور دربار رب مصطفیٰ میں مدح سرائی کا نعت گوئی کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا دیکھیں گے کہ آج شان دسترخوان میں کیا ہے اور پھر شان اسلام میں اسلام کی تاریخ کے کن اوراق کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد. جناب یہ رمضان المبارک میں ہمیشہ میرا ایک جو ہمارے اچھے زمانے جب ہوتے تھے نا گھر میں افطار کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ کیا یاد کرا دیا ہے نا تو ہماری بڑی فرمائش ہوتی تھی کہ وہ کسٹرڈ پوڈنگ جس کو کہتے ہیں یا فرنی اس طرح کی کوئی چیز فرنی اچھا آج وہ بننے لگی ہے تو آج شان دسترخوان میں فرنی بنانی ہے ذرا بلائیں کچھ افراد کو جو یہ نیک کام اوپر سے میں بلا لوں کوئی دیورانی جٹھانی بیٹھی ہے ادھر آپ دونوں ہیں
देवरानी जेठानिया, फिर पूरा अपना लड़ाई का सच्चा किस्सा सुनाना होगा। नहीं, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि लड़ाई नहीं होती। ये देखो, आग और पानी का मिलाप हो सकता है कभी? आए नीचे, आइए आप दोनों। यहाँ से किसी सास बहू को बुला ले मैं। सास बहू कौन है यहाँ पे? सास बहू, जो लोग साथ हाथ नहीं उठा रहे वो फिर नहीं क्या बना सकते हैं? आप हैं सास नीचे हैं, सास ग्राउंड फ्लोर पर हैं। आप आ जाएं वो आपके, ताकि अपनी बहू शनाख्त करके वाली सास आ जाएं जिनकी बहू नीचे आ रही है। आ जाए भाई, चलें। फिरनी, ये क्या होता है? ये फिरनी होता है, फिरनी होता है, क्या होता है जुनैद भाई? यार वसीम भाई, मैं तो खाई है बस। अच्छा, इसका जो वजूद है, मैं वसीम भाई क्या जी जी जी, हाँ आप करो। नहीं जनाब, करशी जामे शीरी के ज़ेर एहतमाम हमारा सेगमेंट करशी जामे शीरी में आम सिरप की तरह आर्टिफिशियल एसेंस शामिल नहीं, इसकी खुशबू और फ्लेवर बिल्कुल नेचुरल है। और साथ ही हमारे कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं। गोल्डन सन वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, वो वाहिद ब्रांड है जो कि प्रोडक्ट वेट में 100% पूरा उतरता है। गोल्डन सन की जानिब से शान रमज़ान में एक कार्ड दी जाएगी। जब तक हमारे शुरका आते हैं तब तक हम ये कुछ स्पॉन्सर्स की अनाउंसमेंट्स कर लेते हैं। इसके साथ ही सूफी वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल की, सूफी जो नाम है एतमाद का, उनकी भी कार है। ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला होता है शान रमज़ान में इस सेगमेंट के बाद, कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से शुरका तशरीफ़ लाते हैं। रोज़ाना कोई एक नात खा यहाँ पर आते हैं। आप लोगों की वोट्स की बुनियाद पर होता है विनर का फैसला। तो शान रमज़ान में जो ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर हैं उनको 27 रमज़ान मुबारक को दी जाएगी ये कार। और इसके अलावा एक जे डॉट की कार भी दी जा चुकी है और एक जे डॉट की कार मजीद दी जाएगी शान रमज़ान में। और इसके अलावा क्यू मोबाइल जो कि है पाकिस्तान का नंबर 1, वालेकुम अस्सलाम, आइए, जो है पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड मोबाइल, उसकी जानिब से भी हमारा जो सेगमेंट है शान इल्म, जो क्विज कंपटीशन होता है, उसके विनर को हर जुमे को दी जाती है एक कार और रोजाना दी जाती है एक अदद बाइक। और इसके अलावा क्यू मोबाइल के बेशबहा इनामात भी और मोबाइल सेट्स भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। इनमें सास बहू कौन है और नन भावच पता नहीं क्या? हाँ, अच्छा, तो घर पे कौन ज्यादा, कितना हाथ बटाती हैं आपके? बिल्कुल नहीं बटाती। बिल्कुल नहीं बटाती? बिल्कुल नहीं बटाती कह रही हैं? क्यों नहीं बटाते? क्योंकि मैं यहाँ पे होती ही नहीं हूँ। हैं? सऊदीया से आई हूँ। सऊदीया से आए हुई हैं। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? अभी कितने दिनों से हैं? यहाँ 2 महीने में 60 दिन होते हैं आंटी। 60 दिनों में एक भी दिन जो हाथ बटाया हो इन्होंने? नहीं। एक दिन जो हाथ बटाया हो इस औरत ने? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये मसला है। आप कहती हैं तो क्या क्या जवाब देती हैं? नहीं, मैं कहती नहीं, मैं खुद ही कहती हूँ। अच्छा, जो आप कहती हैं वो दिल में ही कहती हैं बस? हाँ, ये आपसे कह रही हूँ। अच्छा, ये आप उससे कह रही हैं। अब तो सुन लिया सबने। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप खुद क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लेती कि चलो अब मैं आई हूँ जब 2 नहीं, महीने? मैं करती हूँ, लेकिन बस वो ये है कि नहीं करने देती हूँ बिल्कुल भी ना। मतलब नो, नहीं, एक्चुअली मैं 8 साल बाद यहाँ किधर आ गया हूँ मैं? जुनैद भाई, मैं जन्नत से आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त। हाँ, जहाँ पर बहू कह रही है मैं काम करने दे चाहती हूँ, अम्मी करने नहीं देती काम, और अम्मी कह रही है, ऐसे नहीं लग रहा मैं जन्नत से लाइव हूँ इस वक्त आपसे? वाकई हाँ, आप इसको मजाक समझिए कुछ भी, लेकिन वाकई में सीरियसली ऐसा है। नहीं मैं मजाक ही समझ रहा हूँ कि आप मुझसे कर रही हैं। समझिए, लेकिन ऐसा है मैं इफ्तारी सहरी में खुद ही सब कुछ करती हूँ। अच्छा, तो आज कौन बनाएगा? फिरनी कौन बनाएगा? मिलके बनाएंगे। तो यही काम घर में क्यों नहीं हो सकता? घर में मिलके थोड़ा बहुत जो कटिंग वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, मगर बिल्कुल भी ना, मतलब अम्मी किचन में वो नहीं होने देती है एंटर, कि भाई मैं अम्मी किचन में एंटर नहीं होने देती? खबरदार, चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए कि क्योंकि भाई हाँ, वो हाँ कह रही हूँ। ये मैं सारी पोले खोल रहा हूँ, शान दस्तरखान में पोले खोली जाएंगी आज तमाम नहीं, घर वो में। एक्चुअली इसलिए कि जो हस्बैंड है वो मतलब हम लोग 8 साल बाद तकरीबन आए हैं, ओह, तो अच्छा। इस वजह से वही कहते हैं कि जो भी मैं खाऊंगा अम्मी के हाथ का ही खाऊंगा। वहाँ पे खा खा के आपने जितना बोर उसका भी करना हक है कोई अच्छा भी खा ले वो हाँ, जिंदगी में, वही ये है। ठीक बात। चलें, ये बात ठीक है। 8 साल बाद आए। और क्या देवरानी जेठानी? अच्छा, मुझे तो रिश्तों की कुछ समझ नहीं आती थी, ये क्या होता है देवरानी जेठानी? आप में से कौन किसका क्या है? मैं जेठानी हूँ, ये देव। हाँ हो, मतलब क्या, मतलब कुछ आसान समझाए ना, मतलब कि शौहर के अब्बा की बहन, क्या नहीं, क्या क्या होता है वो? वो जो मेरे शौहर हैं, उनसे जो छोटे वाले भाई हैं, ये उनकी वाइफ है। आपके शौहर के भाई की वाइफ है? जी अच्छा, तो एक ही घर में, तो मतलब हाँ, एक ही घर में होते हैं ना। अच्छा, एक ही घर में खड़े हो गए देवरानी और जेठानी। जेठानी तो घर में कौन खाना बनाता है? मिलके बनाते हैं। मिलके बनाते हैं? जी। सास बहू मिलके नहीं बना सकते, देवरानी जेठानियां बना रही हैं मिलके। देखें आप, इस पे एक्शन लें। चले जी, बनाइए, फिरनी बनाइए, और उसके बाद जरा हम देखेंगे कि किसकी फिरनी कितनी ज़्यादा खुश शक्ल है, और उसकी बुनियाद पर होगा फैसला। और इसी दौरान ज़रा सा कुछ इसी सेगमेंट में हम कुछ इस्लाम के औराफ में भी नज़र डाल लें, किस हवाले से आज जी वसीम, गुफ्तगू होने आज लगी। तो ये पेन में ले लूं? जी, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग
अच्छा, टॉपिक है, वो क्या? और वो है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नाम इस्लामी तारीख में, यानी आप समझ लीजिए कि वन ऑफ द टॉप मुस्लिम साइंटिस्ट्स इब्नुल हैसम, के जिसने, ये इब्नुल हैसम है, कि जिसने विजन, इंसानी आंख देखती कैसे है, रोशनी क्या है, इंसानी दिमाग किस तरह से अपने अंदर इमेज बनाता है जब आंख देखती है, पूरी की पूरी दुनिया को सबसे पहले अगर रूशनास कराया तो इब्नुल हैसम ने करवाया, जिसका, जी हाँ, इसका इब्नुल हैसम का असली नाम अबू अली अल हसन इब्नुल हैसम, और ये माशाल्लाह से इनकी पैदाइश हुई इराक के अंदर 354 हिजरी में, वफात इनकी 430 हिजरी में मिस्र में हुई। और इब्नुल हैसम को ये रियाजी का, तबीयात का, तिब, इलाहियात का, मंतक, शायरी, मौसीकी, इल्मुल कलाम इनके पसंदीदा मौज़ूआत थे। इब्नुल हैसम ने इन मज़ामीन में मेहनत करके महारत हासिल की। और ये आप देख रहे हैं कि इब्नुल हैसम ने सबसे पहले रोशनी का जो कॉन्सेप्ट है कि आसमान से रोशनी सूरज के ज़रिए इंसानी आँख से निकलकर, जो हम कहते हैं ना रेटिना, ये आप देख रहे हैं, ये इस जगह को रेटिना कहते हैं, रेटिना, आँख का रेटिना, जहाँ पर के इमेज बनता है। तो इब्नुल हैसम ने ये पहली मर्तबा साबित किया कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और सीधी नहीं बनती, और दिमाग फिर उसको सीधा करता है। क्योंकि उससे पहले अफलातून और बैतलिमूस जो कि रोमन साइंटिस्ट थे, ये कहते थे आँख से रोशनी निकलती है और चीज़ों तक जाती है। ये इब्नुल हैसम थे जिन्होंने जदीद साइंस की, लाइट की साइंस की जो पहली जो नज़रिए को बदला है, जिस पे आज सारी साइंस बेस करती है, वो ये है कि रोशनी आती है और इमेज बनता है। ये एक प्रिज्म है, ये आप देख रहे हैं। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों ने दिया पूरी की पूरी दुनिया को। जब हम देखते हैं ना जो रेनबो जो बनती है, कौसे कज़ा जिसको हम कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों ने दिया सबसे पहले सारी की सारी दुनिया को। जी आपको आगे दिखाता हूँ। अब ये देखिए आप कि ये इब्नुल हैसम का कैमरा है। मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे पहले इब्नुल हैसम ने बनाया, और इब्नुल हैसम ने ये साबित किया कि रोशनी जब मैग्नीफाइंग ग्लास से निकलती है, ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा है वसीम, और कैमरा बना है दो लफ्जों से, कमर अन, हाँ, कमर अन, मर इंसान को कहते हैं, मर इन, कमर इन, इसका मतलब है उल्टा इंसान या इंसान का इमेज, ठीक है, उल्टा इमेज। तो आप ये देखिए कि ये उल्टा इमेज बना करता था। ये सबसे पहले मुसलमानों ने सारी की सारी दुनिया को बताया। ये पहला दुनिया का कैमरा है, बल्कि मैं आपको अगला इमेज देखेंगे आपको और समझ में आ जाएगा कि ये देखिए वसीम, पीछे मस्जिद है, हाँ, वो इसका इब्नुल हैसम का कैमरा है, और वो देखिए सामने कपड़े पर उल्टा इमेज बन रहा है। हाँ, हाँ। तो इब्नुल हैसम ने सारी की सारी दुनिया को ये बताया कि जो इमेज बनती है आंख के अंदर वो उल्टी बनती है। आज तक इब्नुल हैसम की बनाई हुई, और ये देखिए ये इब्नुल हैसम का मैग्नीफाइंग ग्लास है। इब्नुल हैसम ने जो साइंस को इंफॉर्मेशन दी है, साइंस उसमें कोई चेंज नहीं ला सकी। अब आप चाहें तो ऑडियंस से सवाल कर सकते हैं। सवाल कर सकते हैं? हाँ, वो अच्छा कर लीजिएगा। अब ये मैं आपकी मदद कर दूंगा। हाँ, आपकी मदद की जरूरत है। चलें, ब्रेक पे जाने से पहले जरा हम कुछ दो तीन थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ भी आ जाए। अगर माइक अगर प्लीज दे दें यहाँ पर हमारी वॉलंटियर के पास की माइक। सबसे पहले तो मेरी दरखास्त है, पूछे कि बात किसकी हो रही थी। सर, इस सेगमेंट का नाम क्या था पहले बताएं? हाँ, वैसे आज हमने अनाउंस किया था नाम। हाँ, किया था। कौन से? हाँ, एक तो सेगमेंट का नाम पूछे, फिर किस साइंसदान की बात कर रहे थे हम लोग? चलिए, किस साइंसदान की बात कर रहे थे? मैं कुछ चला जाऊँ ऑडियंस के दरमियान? अच्छा चले, मैं इसी तरह चला जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, माइक दे मुझे। चले, थैंक यू। किस साइंसदान की बात हुई आज शान इस्लाम में?
ابن الحسم کی. دیکھیں اب اتنا تو نہ ایزی نہ لینا آڈینس کو ہماری. یہ کیا مطلب یہ تم اور کیا بنیادی وجہ شہرت ابن الحسم کی تھی؟ اس نے کون سے کانسیپٹ پہ بات کی تھی؟ ایک بڑا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری زندگیوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ کیمرے سے متعلق، بینائی سے متعلق سب سے پہلے انہوں نے یہ وضع کیا تھا. اچھا ابن الحسم پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتائیں مجھے. عراق کے کس شہر میں؟ اور یہ ہمارے ان دوستوں کے لیے جے ڈاٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ جواب دے رہے ہیں. جی بغداد میں، عراق کے شہر بغداد میں نہیں پیدا ہوئے تھے، عراق میں. ابن الحسم پیدا تو عراق میں ہوئے تھے لیکن عراق میں بصرہ میں پیدا ہوئے. بصرہ میں پیدا ہوئے. بصرہ میں. چلیں کوئی اس کا صحیح جواب دیتے ہیں. کیوں موبائل دوں گا میں؟ پورا نام بتا دو گے ابن الحسم کو. واہ 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 واہ. وہی اس پہ کیوں موبائل ملنا چاہیے؟ بنتا ہے نا اس میں. پورا نام بتائیں، پورا نام. ہاں ابو علی ہاں. ابن الحشم. نہیں پورا نہیں ہے نام. ابو علی، ہاں ابو علی حسن. بتا دیں باجی، بتا دیں آپ پیچھے سے، کوئی مسئلہ نہیں، مشورے کی اجازت ہے. دوبارہ بولو، دوبارہ بولو. ابو علی حسن ابن الحشم. قریب قریب ہے. اس میں ابو علی الحسن بالحسن بالحسم، لیکن یہ ٹھیک مانا جائے میرا خیال ہے. واہ واہ زبردست. چلے جی کیوں موبائل ہوا یہ آپ کا؟ زبردست، نائس. تالیاں بجا دے بھائی، کوئی ایسی بات نہیں. چلیں. اور ابھی ایک لفظ کا تذکرہ ہوا تھا، پرزم. پرزم کی بات کی تھی. کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ویسے ابھی اس کا یہاں پہ جنرل بھائی نے نہیں بتایا، لیکن جنرلی کیا کہا جاتا ہے اس کو اردو میں؟ پرزم کو واہ اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ پورا بتائیں. مائک دے رہے ہیں قریب قریب. آپ یہ جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال ہے. ہاں جی. پرزم کو منشور ہی بولتے ہیں. منشور. منشور. ایک جملہ اور ہے منشور سے پہلے. جتنا پڑھا تھا. پرزم کو کہا جاتا ہے اردو میں تکونی منشور. لیکن ٹھیک ہے آپ بہت کلوز ہیں تو یہ جواب بھی بالکل ٹھیک مانا جائے گا آپ کا. جے ڈاٹ کا میں بڑا حیران ہوں، مجھے بھی نہیں. دیکھیں آپ یہ ہماری آڈینس کافی چیزیں جانتی ہے جناب، بہت چیزوں سے آگاہ ہے. چلے جی ابھی ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا آل پاکستان نعتیہ مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون ہے ہمارے مہمان، کون سے نعت خوان ہیں جو کہ کہاں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید آگے بڑھاتے ہیں سلسلے. محفل نعت سجا لینے سے کیا ملتا ہے؟ محفل نعت سجا لینے سے کیا ملتا ہے؟ سلسلہ مالک و مختار سے جا ملتا ہے. سلسلہ مالک و مختار سے جا ملتا ہے. ان کی توصیف ہے بس وجہ وجود ہستی. ان کی توصیف ہے بس وجہ وجود ہستی. ان کی توصیف کے بدلے میں خدا ملتا ہے. سبحان اللہ. ان کی توصیف کے بدلے میں خدا ملتا ہے. ذکر وجہ تخلیق کائنات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں حسان نذیر صاحب آئے ہیں. آپ حیدرآباد سے تشریف لائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اس نعتیہ مقابلے کا حصہ بننے کا. اور ان کی نعت کا آغاز ہوتے ہی ٹیلی فون لائنز ہماری آن ہوں گی جو کہ کل صبح اذان فجر تک آن ہوگی. 8038 ہمارا نمبر ہے. آپ لکھ سکتے ہیں BR اسپیس ان کا نام حسان، جس کو یہ اسپیل کرتے ہیں HASSAAN HASSAAN، اور آپ بھیج سکتے ہیں 8038 پر. بسم اللہ حسان صاحب. ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ
ہم سوئے حشر چلیں گے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے. پل سے مجھے سابی گناہگار گزر جائے گا. ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ. ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے. شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں. قافلہ سالار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ہمارے آج کے مہمان تھے آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں حسان نذیر، حیدرآباد سے آپ تشریف لائے ہیں. 8038 اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہیں 8038 آپ لکھیے BR اسپیس حسان HASSAN اور بھیج دیجیے 8038 پر. آپ کے ووٹس کی بنیاد پر ہوگا فیصلہ 27 رمضان المبارک کو. اب تو کچھ ہی دنوں کی بات ہے، آج ہم 23ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے 23واں روزہ بھی. تو اب 24 25 26 3 دن مزید 3 ثنا خان آئیں گے اور 27 رمضان المبارک کو ہوگا فیصلہ. ونر کو صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے اس کار کا تحفہ ہے. صوفی جو نام ہے اعتماد کا. اور اس کے علاوہ رنر اپ کے لیے گاما نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر. جنید جمشید صاحب کی جانب سے ہے ایک بائک. اور آج آپ کے ساتھ جائیں گے گاما نیشنل اسٹیبلائزر، کیو موبائل ٹیبلٹ اور کیو موبائل سیٹس. بہت بہت شکریہ اس بزم میں آنے کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد شاہ رمضان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر ہاں مگر بجھی تو نہیں،
اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم نے علماء سے سنا، یہ بات اکثر آپ بھی بتاتے ہیں۔ تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کتنی قابل فخر ہیں وہ بہنیں جس نے وطن سے محبت پر، جنہوں نے وطن سے محبت پر اپنے بھائیوں کو وار دیا۔ کتنی زیادہ لائق تحسین ہیں وہ ساری اس ملک کی خواتین، وہ بیویاں جنہوں نے اس وطن سے محبت پر اپنے سہاگ کو لٹا دیا۔ اور ہم سب کیوں نہ مل کر سلام پیش کریں، قربان ہو جائیں ان تمام تر ماؤں پر کہ جنہوں نے اس وطن سے، اس ارض پاک سے محبت پر اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دیا، اس لیے کہ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ کچھ ہمارے ایسے دوست، کچھ ہمارے ایسے سپوت، کچھ ہمارے ایسے ایسٹس موجود ہیں جن کے ہم قرضدار ہیں، جن کا میں مقروض ہوں، جن کے آپ مقروض ہیں، جن کے آپ سب مقروض ہیں۔ بہت ساری خبریں ہم صرف ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک ٹکر کے پیچھے، اس ایک خبر کے پیچھے کتنی کہانیاں ہیں۔ یہ ہمارے سارے جو دوست، جو بھائی، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو بچیاں، جو ماں یہاں پر موجود ہیں، یہ سب ان شہداء کے گھروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے تمام تر گھر والوں کا تعلق، جو کہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، وہ پولیس سے تھا۔ اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہمیں اور آپ کو بھی احساس ہو کہ پولیس، جس کا کوئی ایک زاویہ ہم عام طور پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کتنی زیادہ قربانیاں ہیں اور کس انداز سے وہ یہاں پر اس شہر کی گلیوں میں، اس وطن کے مختلف شہروں میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ مختلف پولیس اہلکاروں کی، شہداء کی فیملیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں، میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم سب ان سے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنے لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے، اور جس طرح میں نے کہا ہمارا ایک ایک سانس ان کا مقروض ہے، اس قرض کو ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی ایک لمحے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی بھرپور تالیوں میں نہ صرف حوصلہ افزائی کریں بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں۔ یہ سب بلکہ وسیم ایسی نہیں، ان کو تو سٹینڈنگ اویشن ملنی چاہیے، بالکل کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجانی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ پاکستان کا ایک ایک شہری، پاکستان کا ایک ایک بچہ، آپ لوگوں کی ایک ایک، ہماری ایک ایک سانس آپ کی مقروض ہے۔ میں آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کون تھے پولیس میں اور کیا واقعہ ہوا؟ میرے ہسبینڈ۔ آپ کے میاں تھے؟ جی۔ اور کیا واقعہ ہوا تھا؟ گھر سے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے۔ اچھا۔ ڈیوٹی پہ جیسے جا رہے تھے، پتہ نہیں دہشت گردوں نے ان پہ حملہ کیا، فائرنگ ہوئی تھی؟ جی، شہید ہو گئے۔ یاد سے کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ 1 سال 1 مہینہ ہو گیا۔ اور کہاں پر ہوا یہ واقعہ؟ بسم اللہ چوک۔ اچھا، ان کے کیا ڈیوٹی ٹائمنگز وغیرہ کیا ہوتے تھے؟ وہ اپنی نارمل ڈیوٹی کے ٹائمنگز پہ جا رہے تھے؟ جی، کبھی صبح کے ٹائم پہ جاتے تھے، کبھی شام کو، ان کی ڈیوٹی بدلی ہوتی رہتی تھی۔ تو گھر سے جیسے ہی ڈیوٹی پہ نکلے ہیں تو تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو ان کو جیسے، اور کوئی عطا پتہ کچھ نہیں پتہ چلا؟ کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ تھا۔ میرا یہ دیور بیٹھا ہوا ہے پیچھے میرے، یہ جا کے اسپتال میں، سیول اسپتال پہنچ گیا، وہاں سے پتہ چلا ہمیں۔ اور میں بھی بتا دوں جنہوں نے کراچی آپریشن کے آغاز کے بعد، ابھی جو حالیہ آپریشن ہے اس کے بعد، اس میں بھی ایک واضح طور پہ اضافہ نظر آیا ہے پولیس اہلکاروں کی کلنگ۔ اور یہ بہت زیادہ ایکسپوز اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا ٹارگیٹ صرف ہوتا ہے کہ کسی پولیس اہلکار کو شہید کرنا ہے، تو بہت ایکسپوزڈ ہے نا اپنی وردی میں، ایک جگہ پر ایک جگہ ڈیوٹی دے رہا ہے، کسی بھی دہشت گرد کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو اس پولیس والے کو میرا خیال ہے ہمیں زیادہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ وہ میرے اور آپ سے زیادہ ولنریبل ہے، ایک وردی میں اس کو پتہ ہے اس ٹائم پہ اس کو یہاں کھڑے ہونا ہے، اور جن کا ہدف یہ ہے کہ بس انہوں نے پولیس والوں کو نشانہ بنانا ہے، وہ بس ایک یہ اس آپریشن میں بھی شہید ہوئے ہیں بہت زیادہ بہت شہادتیں ہوئی۔ میں ذرا کچھ طرح کی مزید بھی فیملی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ کے کون شہید ہوئے تھے اور کب؟ ہمارے شوہر تھے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ان کی جو واقعہ ہوا تھا یہ بنارس کے پل کے، اچھا، بنارس کے پل کے نیچے یہ عباسی کسی تشویش کے لیے جا رہے تھے، یہ تفتیش کے لیے جا رہے تفتیش کے لیے جا رہے تھے وہ، اور بنارس کے پل پہ ان کا ہوا ہے۔
یہ آج سے کتنے سے پہلے کی بات ہے؟ ये 2 साल हो जाएगा, दिसंबर 15 को हुआ था, 15 दिसंबर के शाम में 7:30 बजे। आपको खबर कब मिली, क्या मिली, कैसे मिली? खबर ये थी कि हम लोग, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो घर पे थी। बाद में फिर पता चला कि कल जाता, कुछ खबर लोगों ने दिया, कुछ के मैसेज में खबर आया इस तरह से, क्योंकि हमारी उस वक्त घर पे लाइट भी नहीं थी, लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो इस वजह से कुछ पता नहीं चल सका। वसीम, एक आपकी इजाज़त, एक सवाल बहन, ये बताइए, इधर देखें बहन। अच्छा अच्छा, आप लोग वैसे तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ होंगे, हम आपसे बात भी करेंगे। बहन, अब कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? एक जब बड़ा घर का नहीं हो तो किस तरह से गुजरता है वो तो पता है, वो भी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है एकदम। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। गुजर बसर ये मुश्किल से हो रही है, बस गुजर रहे हैं। जब घर में कोई बड़ा नहीं होता तो बहुत परेशानी होती है। अब बच्चे सब तालीम हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कोई बड़ा घर में है नहीं, कोई जॉब करने वाला नहीं है, ये सब बहुत मसला मसाइल है। हमारे वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, सास ससुर वगैरह कोई भी नहीं है, तो इससे बहुत परेशानी होती है। अच्छा, हमारे साथ एक ऐसी भी हमारी बहन मौजूद है जो आपके साथ बैठी है। इनके मियाँ की शादी को तकरीबन 2 साल हुए। हमारी ये जो बहन बैठी हैं, इनके वालिद साहब की शहादत को 2 माह हुए हैं। कौन सी वजह है इनके? अच्छा, और इनकी वालदा यहाँ पर ज़ाहिर है इसी सबब तशरीफ़ भी नहीं ला सकेंगे, अभी वो इद्दत में है। आयशा नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा क्या वाक़या हुआ था? जुम्मे के दिन ड्यूटी पर जाना था, पर उस दिन गए नहीं वो। तो मॉर्निंग की ड्यूटी होती है, पर इवनिंग के शराबकोट के एक चौकी के इंचार्ज थे मेरे फादर, और हम लोग प्राउडली कहते थे कि वो कराची के उस एरिया की ड्यूटी कर रहे हैं जो सबसे डेंजरस है। और हम लोग कहते हैं कि हम एक शेर की औलाद हैं, हमारे जिगर भी शेर के हैं। जब हमारे अब्बू को सब कहते थे कि तुम वहाँ से अपनी जगह चेंज कर लो, कि अब तुम सबकी नज़रों में आ गए हो, सबके टारगेट में आ गए हो, तो उन्होंने कहा कि लोग शहीद होने की आरज़ू लेके पैदा होते हैं। मैं यहाँ से अपनी चेंज नहीं करवाऊँगी, जहाँ मौत आनी है मैं वहीं पे मरूँगा, चाहे मेरे इर्द चाहे जितने गार्ड भी हुए। तो कुछ रिलेशन में रिश्तेदार थे, उनको कहते थे कि तुम वहाँ से अपनी जगह तब्दील करवा लो, तो वो कहते थे मैंने शेरनी का दूध पिया है, मैं नहीं हटूँगा वहाँ से। तो असर की नमाज और मगरिब की नमाज़ पढ़ के वज़ू की हालत में मस्जिद से बाहर आए, अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तो एक अफ़गान के दहशतगर्द उनको टारगेट किया, शहीद हो गए। जुमे का दिन था? जुम्मे का। मगरिब की नमाज चौकी पर पढ़ी? अपनी ड्यूटी पर मगरिब की नमाज पढ़ी और वज़ू की हालत में शहादत। ये देखिएगा, अगर इसका क्लोज लेंगे, ये तो वाकई शेर लगते हैं देखने से। वो क्या कहते थे, कुछ इस हवाले से बात करते थे? ज़ाहिर है इसलिए कि शहर में जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद दहशतगर्दों ने ज़्यादा निशाना बनाना शुरू कर दिया है पुलिस वालों को। ज़ाहिर अंदाज़ा उनको भी होगा कि अब उनकी जान ज़्यादा ख़तरे में है पहले के मुकाबले। कुछ डिस्कस करते थे, कुछ बात होती थी कभी सवाल? क्योंकि इंचार्ज थे उस एरिया के, इसलिए बहुत ज़्यादा टारगेट होते थे। कई दफ़ा इनके गार्ड्स शहीद हो गए जब टारगेट इनको किया गया था, लेकिन नसीब में लिखा था। हम भी इनको बोलते थे कि अब्बू आप हमारे लिए हमारा सब कुछ है। क्या कहते थे? नहीं हटते थे, कहते थे मैं जहाँ मौत आनी है मैं वहीं पे मरूंगा। आप लोगों को इत्तला कैसे मिली? हम लोग घर पे थे, शाम को घर से जब जा रहे थे तो भाई एक पेपर देकर आया था, तो उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। सो रहे थे, नॉर्मली एसी में सोते नहीं थे क्योंकि उनको सूट नहीं करता था। तो उस दिन बहुत गहरी नींद सो रहे थे, तो मैं देख के हैरान हुई कि अब्बू आज इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे हैं। मैंने ऊपर ब्लैंकेट डाला, मैं नमाज़ पढ़ के सो गई। तो उसके बाद उठे और ऑफिस के लिए चले गए। छोटी बहन? इनकी बहन है? ये मेरी बड़ी सिस्टर। बड़ी बहन है?
बेटा पकड़ना होगा। क्या नाम है आपका? मरियम। करीब करो। मरियम। अच्छा, अब मरियम अब ये बताओ, अब घर पे क्या, कैसे, अब जिंदगी कैसे गुजर रही है अब्बा की शहादत के बाद? बाप का साए के बगैर जिंदगी जैसे गुजरती वैसे गुजर रही है। आपकी अम्मी क्या कहती हैं, वालदा क्या कहती हैं? मेरे फादर कहते थे कि उन्हें मना करते थे लोग कि आप वहाँ से नहीं पोस्टिंग करवाते हैं, आप हट जाएँ वहाँ से। तो कहते थे मैं दहशतगर्दों के जनाजे उनके घर तक पहुँचाता हूँ, ये मुझे टारगेट क्यों करेंगे? अगर उसके बावजूद ये मुझे टारगेट करते तो इनकी अपनी मर्ज़ी और मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी मौत है, मेरी शहादत है। कुछ हमारे साथ हमारे कुछ और भी हमारे पास घर है, पैसा है, खाने को रोटी है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो सिर्फ हमारे फादर नहीं है। ना वो पैसा हमें खुशी देता है, ना वो घर हमें खुशी देता है। हमारे फादर थे, वही हमारे लिए सब कुछ थे। उनके बिना शायद हम लोग जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं मुकम्मल नहीं है, वो ना कभी मुकम्मल हो सकती। सही बात। वैसे मैं ये सोचता हूँ वसीम कि हम कुछ भी कहें किसी के बारे में, हम कुछ भी कहें किसी के बारे में, लेकिन जो इंसान अपनी जान का नजराना दे दे, आखिरी बात है। और हमारे पुलिस वाले, हम ऐसे पढ़ते हैं, खबर पढ़ते हैं, 2 अहलकार मार दिए गए। एक तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मीडिया वाले इतने जालिम और शकीउल क़ल्ब हैं कि जो आपके लिए जान दे रहा है उसको उठा के लिखते हैं कि मार दिए गए, गोली मार दी गई। लिखना चाहिए शहीद हो गए। ये हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। वसीम, आप यकीन करिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुल्कों में अगर कोई पुलिस अहलकार मार दिया जाए, आप यकीन करो पूरा मुल्क हिल जाता है। एक एक शहरी सोग मनाता है इस बात का कि यार हमारी हिफाजत करने वाले को किसी ने मार दिया। इतनी बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात। कुछ और बहनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कि किनके साथ क्या वाक़या हुआ था? मेरे हस्बैंड गए थे वो ड्यूटी पे, बस ड्यूटी से फ़ोन मुझे आया कि मुझे गोलियां लग गई हैं। तो मैंने कहा कहाँ लग गई यहाँ पे गोलियां? क्या मुझे गोलियां लग गई हैं, आप फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल पहुँचे, एमरजेंसी वार्ड। आपको फ़ोन आया था कि ये हुआ? जी, मुझे उनकी कॉल आई थी। उनकी खुद की कॉल आई? खुद उनकी कॉल आई अटैक के बाद? जी, जब ये हादसा हुआ ना तो उन्होंने पहली कॉल उन्होंने उधर थाने में की, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की, दूसरी कॉल मुझे की, कहने लगे मुझे गोलियां लगी, हम फ़ौरन पहुँचे। मुझसे कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, किसको बोलूं किसको नहीं। कि मेरे यहाँ पे ससुराल वाले नहीं, पंजाब में है, यहाँ पे कोई नहीं। मेरी मम्मा है, मेरे वाले की डेथ हो गई है। मम्मा है, मम्मा भी बहुत वीक हैं और बीमार थी उस वक्त, उस दौरान। मैं मम्मा को बोलूँगी, मम्मा बिल्कुल दिल पे अटैक लेंगी अपना इस बात पे। और घर में कोई भी नहीं, भाई है, बस मैं भाई को क्या मैं बताऊँ। तो मैं इतनी पागल हूँ जैसी हो गई। तो मेरे पड़ोस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, उन्होंने मुझे फ़ौरन उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे वो नहीं थे। वो फिर हमने स्टेशन वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। अच्छा। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है? मैंने कहा नहीं, किसी ने नहीं इन्फॉर्म किया मुझे। उन्होंने खुद बताया कि मुझे गोलियां, उन्होंने खुद फ़ोन किया है, ये गलत नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा वेट करें, शायद वो रास्ते में होंगे। इतनी देर में वो मोबाइल पुलिस की आई और ये बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा सुकून मिला कि ये बैठे हैं, कोई टांग में लग गई होगी इनकी चोट। तो चलो अल्लाह ने बचत कर दी। सही। जब वो नीचे अपने पाँव से उतरे, स्ट्रेचर पे लेटे, खुद तो अपने पैर से उतरे, खुद अपने पाँव से उतरे। फिर मुझे
से मुझे इतना जहन में नहीं था कि ये शहीद हो जाएंगे, गोलियां उनको काफ़ी लगी थी। क्या आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मुझे खुद अपने इत्मीनान पैरों से हुआ, उनको उतरे, बैठा स्ट्रेचर हुआ पे देख बैठे? कर फिर मुझसे बात हुई, मुझे अपना वॉलेंट दिया, अपना मोबाइल दिया अपने हाथों से कि ये पकड़ लो। मैंने कहा ये क्या हो गया आपको? कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो बहुत बहादुर थे, इनको पहले ही पता था जैसे हालात कराची के चल रहे थे ना, बहुत हालात ख़राब चल रहे थे। मैं कहती ये ड्यूटी छोड़ दें आप, और यहाँ से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ये बहुत डेंजर इलाका है। वो कहते थे नहीं, जहाँ पे जब मेरी मौत आनी है वो आनी है, और जहाँ पे जो चीज़ लिखी हो, अगर मैं ट्रांसफ़र करा के कहीं चला भी जाता हूँ ना, तो मुझे जहाँ पे अगर मेरी मौत लिखी हुई है मुझे अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा देंगे। फिर क्या हुआ? वो इतने सही हालत में उनके ऑपरेशन थिएटर जब में फिर गए? वो वहाँ पे जब वो ऑपरेशन थिएटर गए, उसके बाद मुझे नहीं पता, वो मैं खुद अपने सही हुलिये में नहीं थी, खुद बेहोशी हो गई। जब मुझे होश आया ये ऑपरेशन थिएटर थे और मैं बाहर बैठी हुई थी, और 2 दिन ये ऐसे ही रहे बेहोश। इनको वेंटिलेटर में रखा था, ऑपरेशन हुआ इनका, कामयाब हुआ, लेकिन फिर 2 दिन वेंटिलेटर में रखने के बावजूद फिर जब 20 जुलाई को इनकी डेथ हुई, शहीद हो गए हैं। उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी। बस ये है कि आप सबको इतना मालूम कि जब इंसान एक घर का सरपंच चला जाता है ना, उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है, बहुत कुछ भी नहीं बचता उसके लिए। और हम कितनी ही बातें कर लें, इसका अंदाज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जिन पर बीत रही होती है। हमारी एक और बहन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप? मेरे शौहर मुर्तज़ा माइक हसन में। थे। आपके शौहर? मुर्तज़ा हसन। मुर्तज़ा हसन। पाकिस्तान बाज़ार थाने में थे। अच्छा। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाज़ार थाने में। अच्छा। तो वो मैट्रिक के इम्तहान हो रहे थे, वहाँ शाइन स्कूल था, वहाँ पर ऑन ड्यूटी थे वो। क्या थे वहाँ पे? ऑन ड्यूटी थे। अच्छा, ऑन ड्यूटी तो थे। वहाँ मैट्रिक के पेपर हो रहे थे, तो वहाँ गए थे देखने के लिए। कितने से पहले? आज से कितना, यानी कितने से पहले का वाक़या है? ये हादसे से 10 मिनट 15 मिनट पहले का नहीं, वाक़या मैं कह रहा हूँ ये वाक़या जो सारा हुआ ये आप 15 अप्रैल को हुआ था। अच्छा 15 अप्रैल, ठीक। किस 15 अप्रैल को? ये अभी 1 साल हो गया, 1 साल और कुछ माह हुए हैं अभी। अच्छा। तो पहले तो वो 10 मिनट पहले मुझे फ़ोन पे बात कर रहे थे। अच्छा। फिर वो कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है और मुझे पेपर ख़त्म होने वाला है, मैं पेपर के लिए जा रहा हूँ वहाँ शाइन स्कूल, और मैं तुम्हें वापस आके फिर फ़ोन करूँगा। अच्छा। तो मेरी बेटी भी बीमार थी, तो उसके लिए कह रहे थे कि तुम उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना, तो मैं अभी आके वापस फिर फ़ोन करूँगा तुम्हें। मैं कहा अच्छा। फिर वो चले गए और वो शाइन स्कूल गए पहले, वहाँ जाके उन्होंने सब काम वाम देखा, उसके बाद अजान हो गई, फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए बस स्कूल के गेट पे ही निकले थे। अच्छा। तो वहीं पर वो शहीद हो गए फ़ौरन, और मुझे बस 10 मिनट के बाद ही जो है वो, मतलब जाते जाते मार दिया कि किसी जी, और बहुत बुरी तरीके से जो है ना उनको मारा था। बस 10 मिनट के बाद ही मेरे देवर का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि आप हमारे घर आ जाइए। 10 मिनट के अंदर ही मुझे खबर आ गई। इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें फेडरल बी एरिया में शिफ्ट कर दिया था। हमने उनसे कहा आप भी आ जाइए यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी ड्यूटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे बहुत काम है यहाँ पर, मैं नहीं आ सकता अभी। बहन आप बताइए। आप बताइएगा। आप बताइए। माइक। मेरे शोहर अशफाक़ी में सब इंस्पेक्टर थे वो। कल उनकी पहली बरसी थी। कल? जी, 22 फिरोजे को। अच्छा। उनका रोता था, बैंक गए थे। सुबह पुलिस वाला घर पर आया, 11 बजे का टाइम था। बेल बजाई उसने, मेरे बेटे से कहा बेटा बाहर कोई आया है। बेटा नीचे गया, उसने कहा बाबा को आपकी गोली लग गई, जिन्ना अस्पताल पहुंचो। मैं, मेरा बेटा, मेरा छोटा देवर, हम जिन्ना अस्पताल गए।
रिसेप्शन पे जाके मैंने कहा इमरजेंसी में कोई केस आया है अशफाक अहमद का। उन्होंने कहा कि आप सीधे हाथ से मुड़ जाए। हम गए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके हल्की 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 आवाज़ें आ रही थी। बस उसी वक्त वो तैयार होके गए थे। मैंने उनके कपड़े प्रेस किए थे। रोज़ा था, हम लोग पूरे रोज़े रखते, ये भी और मैं भी। 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। मैं और मेरा बेटा थे, हम लोग भाग के गए। आपका बेटा आया भाई इधर? जी मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, घर पे बुखार है उसके। बेटा कहाँ है? बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। एक छोटा बेटा, एक 9 साल का बेटा है। मैं और ये गए, ये अभी 18 साल का हुआ है 1 अप्रैल को। हम लोग अस्पताल पहुँचे तो उनके इधर इसकी बहुत हालत ही सुन हो गया था। ये एक बेटा है छोटा। हम लोग अस्पताल में जो उनको डॉक्टर्स लगे थे, सब पुलिस वाले खड़े हुए थे वहाँ पे। उनको बहुत सारा खून बह रहा था। मुझे हटा दिया वहाँ से। मुझे कहा आप दूसरे कमरे में चले जाए, आप अपना रोज़ा तोड़ लें। मैंने कहा मैं नहीं, हम 7 रोज़ा रखते, हम 7 रोज़ा खोलेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर ही रखा। मुझे उनकी फिर शक्ल भी नहीं देखने को मिली। वो बस आखिरी उनके अलग से आवाज़ निकल रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा जाके, बिल्कुल ठंडा हो रहा था। मैंने कहा शाह क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा आप हट जाएं यहाँ से। मुझे वहाँ से हटा दिया। फिर डॉक्टर्स बोली बड़ी कि आप अपना रोज़ा तोड़ लो। मैंने कहा नहीं, हम साथ में रोज़ा खोलते हैं, हम साथ कहीं भी होते हैं। वो रोज़ा इफ्तार करने घर पर ही आते हैं शाम में। फिर उसके बाद मुझे हटा दिया वहाँ से। फिर हमारे ससुर आए। मैंने कहा अब्बा इनको गोली लग गई है शाह को। मुझे जब तक नहीं पता था उनको कितनी गोलियां लगी है। उनको 3 गोलियां मारी थी। उन्होंने फाइटिंग भी बहुत की थी, उनको मारा भी बहुत था। लेकिन ये कमज़ोर दुबले पतले से थे, वो मोटे मोटे से थे। इनको ले गए, मुझे पता ही नहीं। फिर आखिरी वक्त में भी मुझे उनकी शक्ल ठीक से देखने को नहीं मिली। फिर मेरे ससुर ने कहा बेटा हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। ये हमारे सारे जो मेहमान हैं ये आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज की हमारी शान अफ्तार इन्हीं के नाम है। ये बेटा मेरा कहने लगा ये मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा तो भी आएंगे, मेरे बाल कटवा के लेकर आएंगे। ये मेरे शाह। वसीम ये दिखाओ जरा सबको। आइए आप आइए मेरे साथ। और साथ चल। अशफाक अहमद साहब पुलिस डिपार्टमेंट के, ये उनका कार्ड। आज की हमारी शान रमज़ान इन्हीं माओ इन्हीं बहनों के नाम है। और मैं ये बड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ना किसी के लिए कोई इमदाद तलब कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये लोग कोई ये नहीं है, और ना हम किसी को यहाँ पर रहम की नज़रों से देख रहे हैं, बल्कि हम इनको यहाँ बिठाकर इनकी दास्तानें सुनकर दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये सब हमारे हीरोज़ हैं, हम इनके मकरूज़ हैं, इन्होंने अपने घर वाले लुटाए हैं हमारे वतन के लिए, हम इनके एहसानमंद हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इस कौम का एक एक बच्चा ये पूरी दुनिया देखे और ये पूरी दुनिया सुने। हम इनसे इजहार यकजहती के लिए और इनके कातिलों से इजहार बेजारगी के लिए, इनके कातिलों पर लानत करने के लिए, इनके कातिलों की नीस्तो नाबूदी और बर्बादी और तबाह बर्बादी की दुआ करने के लिए और उनका सद्देबाब करने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज शान रमज़ान इन्हीं तमाम तर साथियों के नाम हैं। एक वक्फे के बाद हम दोबारा मिलेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर चाहता हूँ कि हम इतनी भरपूर तालियों में इनको खिराज अकीदत पेश करें कि वो तालियां ना हो बल्कि इनके कातिलों के मुंह पर तमाचे हों और शायद कुछ शर्माएं। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे।